Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 9 math. Okay, see, many students of mine, they were asking me, sir, kindly make a video on logarithm. Right, children? So, today we will make a video on logarithm. So, children, you know what you have to do? What? That you need to open your copy, pen, and see the video completely, children. Watch the video completely, involve yourself in each and every steps, and trust me, after this video you will be very strong in logarithm. Right, children? So you know my punchline. What is that? Build it right and build it once. Okay, so let us start the chapter number 6. Right, children? Sorry bachcho, chapter number 7. The name is logarithm. Okay, children, write down logarithm. Okay, it's a very important chapter and very easy at the same time, children. Okay, this chapter, this is particularly meant for ICSC, class 9 students. Okay, clear? So first you write the children definition. Though the definition is not that much important, but from definition we will find some of the thing which is important. Okay, children. So please write definition. Let A be the real number. Let small a be a real number, let small a be the real number such that a is greater than 0, and a not equal to 1. Okay, let a be a real number such that a greater than 0 and a not equal to 1. Okay, and let b is a rational number. B is a what, children? Rational number such that a to the power b equal to x. Right, children? A to the power b equal to x. You know the meaning of rational number, children? Any number of the form ratio x by y, where and y belongs to what, children? That is integer. X and y belongs to integer, and y not equal to 0 is known as a rational number. Okay, children. Then I can say b. Okay, let a be the real number such that a greater than 0 and a not equal to 1, and let b is the rational number such that a to the power b equal to x. Then b is called the logarithm of what, children? B is called the logarithm of x. Right? X. Logarithm of x to the base small a. राइट, चिल्ड्रन? तो देखो बच्चों, क्या करना है हमको यहाँ पर? x इज इक्वल टू a टू द पावर b, या मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर b इक्वल टू कितना बच्चों? a टू द पावर b इक्वल टू x. तो b कितना बच्चों? देखो, इससे पहले कि हम जाएं लॉगरिथम फॉर्म में, तुमको ये पता है ये कौन सा फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, समथिंग टू द पावर समथिंग. राइट, ये हम इंडिसेस में पढ़ चुके हैं. राइट, अगर तुमने मेरा इंडिसेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाओ और एक बार वो वीडियो देख लो. इट विल हेल्प यू. राइट, चिल्ड्रन? सो यू सी, चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पर ए क्या है? बेस है. बी क्या है? पावर है. तो जो पावर बी है ये ऐसे रह जाएगा और बेस उधर जाएगा तो लॉग बन जाएगा. हाँ बच्चों, तो एल ओ जी, शॉर्ट में लॉग. और ये चूंकि एक्सपोनेंशियल में बेस था तो लॉग में भी बेस रहेगा, देन वैल्यू. समझे बच्चों? इसीलिए हम कहते हैं बी को क्या? लोगैरिथम ऑफ एक्स विथ बेस ए. समझ में आया बच्चों? ठीक है. अब मान लो मैं तुमको एग्जांपल ले लूं. मान लो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है? 16 होता है. ठीक है बच्चों? तो यहाँ इससे कंपेयर करो बच्चों, तो यहाँ पर a कितना आ जाएगा? 2, b कितना आ जाएगा? 4, x कितना आ जाएगा? 16. ठीक है बच्चों? तो जो पावर था उसको मैंने यूं लिख दिया और 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा लॉग. तो लॉग, चूंकि यहाँ पर बेस था तो यहाँ भी बेस ही रहेगा. समझ में आया बच्चों? तो लॉग बेस 2 16 इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 4. समझ में आया बच्चों? कुछ और एग्जांपल करता हूं. ठीक है बच्चों? राइट, है ना? अब इस डेफिनेशन में हमने पर्टिकुलर कुछ चीजें लिखी जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर के बाद एग्जांपल के बाद करता हूं. ठीक है बच्चों? राइट, है ना? जैसे देखो बच्चों, मैं कहता हूं
2 to the power -3 कितना होता है बच्चों? 1/8 होता है। बोलो हाँ या नहीं। तो अब देखो ये बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, तो इधर भी बेस रहेगा, तो -3 बराबर लॉग क्या बन जाएगा? बेस 2, यहाँ हो जाएगा 1/8। कितना आसान है। 3 to the power 4 कितना बच्चों? दैट इज 81। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितना है? 4 है, वो क्या बन जाएगा? ये 3 अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? लॉग बन जाएगा। तो लॉग यहाँ बेस था तो यहाँ भी बेस रहेगा, लॉग बेस 81। समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूं बच्चों? हाँ ना? ठीक है, तो अब आओ बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं जो हम डेफिनेशन से ही निकालेंगे। हाँ, तो लिखो बच्चों रिमार्क या नोट लिखो। नोट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट लिखो बच्चों नोट का, ये लिखो है ना, लिखो logarithm is only is sorry logarithm of only positive real values are defined। ठीक है बच्चों, तो लिखो logarithms of only positive numbers are defined। रिमेंबर बच्चों, हाँ हमने डेफिनेशन में क्या लिया था बच्चों? लेट ए बी एनी रियल नंबर वेयर ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। मतलब क्या होगा? तुम लोगैरिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का डिफाइन कर सकते हो। उसमें एक कंडीशन था कि ये शुड नॉट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, पहला तो है कि लोगैरिथम नेगेटिव का एग्जिस्ट नहीं करता है ना, और लोगैरिथम 0 का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चों देखो ए ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब क्या? 0 से बड़ा। ठीक है, तो ए 0 भी नहीं हो सकता है बच्चों, राइट? ए 0 भी नहीं होगा। तो logarithm इज ओनली पॉसिबल फॉर पॉजिटिव नंबर्स, नॉट द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये चीजें तुमको थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, राइट? अब सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं बच्चों। log a1 बेस चाहे कुछ भी हो बच्चों, हाँ log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है बच्चों? 0। इसलिए हमने log का वैल्यू 1 नहीं लिया। समझे बच्चों? ए का वैल्यू 1 नहीं लिया है ना। ए का वैल्यू कुछ भी क्यों हो जाए बच्चों, log ए हमेशा कितना हो जाएगा? दैट इज log 1 हमेशा कितना होगा? 0 होगा। समझे? पहला वैल्यू है ना। दूसरा वैल्यू बच्चों, दूसरा पॉइंट, log ये बेस हुआ, ये वैल्यू हमेशा 1 होता है, हमेशा। जैसे कि मैं तुम समझाता हूं बच्चों, ये चीज याद रखना है ना, कि log बेस ए बी, इसका मतलब हम लिखेंगे तो 2 log में log b बाई log a, ये हम चर्चा करेंगे बच्चों, है ना। तो 2 log को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 log में। ठीक है, तो कैन आई राइट हियर लाइक दिस? क्या? log a मतलब log a बाई log बेस a विच इज इक्वल टू 1। इसलिए सेम होगा तो वैल्यू 1। जैसे कि बच्चों मान लो मैंने कहा log बेस 2 2 इक्वल टू 1, log बेस 3 3 इक्वल 1, log बेस 10 10 इक्वल टू 1। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, log कुछ भी बेस हो जाए बच्चों, हाँ 0, log का वैल्यू कुछ भी हो जाए, है ना, log बेस कुछ भी हो जाए, log अगर 0 होगा दैट इज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बच्चों, ये याद रखना, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, log 0 बच्चों, log 0 डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, हाँ एक मिनट, log 1 तो 0 लिख दिया हम लोगों ने, कहीं देख रहा हूं कुछ मिस तो नहीं हुआ मुझसे। log 10 1, log 5 1, ऐसे मैंने कहा बेस तो कुछ भी हो जाए। लोग जैसे मान लो log 2 1 इक्वल टू log 3 1 इक्वल टू log 5 1 इक्वल टू log 10 1, ऑल आर 0। बेस कुछ भी क्यों ना हो, log 1 हमेशा 0 होता है। ठीक है बच्चों, राइट, है ना। हाँ, ठीक है, हो गया। और याद रखना बच्चों, log नेगेटिव का log एग्जिस्ट नहीं होता है, log 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, और log 1 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको याद रखनी पड़ेंगी, है ना बच्चों। बच्चों जब सवाल करोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको याद रह जाएगा, डोंट यू वरी। हाँ, मनीष सर है ना, फिर टेंशन का लेना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो अब सॉल्व एग्जांपल करते हैं बच्चों, बस यही था, सॉल्व एग्जांपल करते हैं, है ना। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 10q इक्वल टू 1000। क्या तुमको करना है? एक्सप्रेस इन लोगैरिथम फॉर्म। हाँ, सवाल पहला करते हैं, क्या? एक्सप्रेस इन द लोगैरिथम फॉर्म। तो बच्चों देखो दिया हुआ 10 स्क्वायर इक्वल टू 100,
तो क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ये बेस है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का, इधर जाएगा तो लॉग बन जाएगा, दोनों तरफ वो बेस ही रहेगा, तो 2 इक्वल टू लॉग बेस 10 100, और आई कैन राइट लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब मैंने कहा 0.2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.04, ठीक है बच्चों। तो क्या देखो ये बेस से उधर जाएगा तो लॉग बन जाएगा, तो 2 इक्वल टू लॉग क्या बच्चों 0.2 0.04, और आई कैन राइट लॉग 0.2 0.04 इज इक्वल टू 2। तो लिख लो बच्चों, बहुत ही आसान है ऐसा लॉग लिखना, ठीक है। मैंने कहा 3 टू द पावर, ये पहला क्वेश्चन था, बीट आई बीट डबल आई और ये बीट ट्रिपल आई इक्वल टू क्या बच्चों 1/3 टू द पावर 3 और विच इज इक्वल टू 1/27। बच्चों ये हम इंडिसेस में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये बेस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग बन जाएगा। तो -3 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ बेस था एक्सपोनेंशियल में, लॉग में भी बेस बन जाएगा। तो आई विल राइट लॉग बेस 3 1/27 इक्वल टू -3। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये सब हमने क्या किया बच्चों, हमने फॉर्म कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथम फॉर्म। समझे बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन, हाँ अब ठीक उल्टा करेंगे। हाँ क्या बच्चों, लॉग को फॉर्म करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब लॉग को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या दिया हुआ बच्चों, देखो ये दिया हुआ है लॉग 216 इक्वल टू 4। तो बच्चों देखो ये बेस से उधर भी जाएगा तो बेस ही रहेगा, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, बेस 2 टू द पावर 4 कन्वर्ट हो गया, और आई कैन राइट 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कहा लॉग बेस ए बी इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इधर ए को क्या बोल रहे हैं बच्चों, हम लोग बेस बोल रहे हैं, है ना। तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, इधर भी एक्सपोनेंशियल का बेस बन जाए। कितना आसान है, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, राइट। मैं कुछ और एग्जांपल करता हूं, log 10 0.1 बच्चों, log 10 0.1 है ना। ये कितना, ये कौन सा फॉर्म है, दैट इज इक्वल टू, दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहा गया क्वेश्चन, इक्वल -1। हाँ कितना बच्चों, -1। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, देखो लॉग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा। तो ये तो बेस से उधर भी बेस रहेगा, तो 0.1 इक्वल टू 10 टू द पावर -1, और 10 टू द पावर -1 इक्वल क्या बच्चों, 0.1। तो ऐसे तुम कर सकते हो बच्चों, राइट, है ना। तो एक्सपोनेंशियल से क्या बच्चों, लोगैरिथम, और लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल कोई बड़ी बात नहीं है। समझे बच्चों, हाँ या नहीं। देन बच्चों, बाय कन्वर्टिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ध्यान देकर सुनो, है ना। तुमको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखो बच्चों, लॉग बेस 3 टू 43, याद है बच्चों मैंने तुम्हें आई मीन एक्सपोनेंशियल वीडियो में तुम मेरा देखोगे इंडिसेस, वहां मैंने तुम्हें 2 का पावर 1 से 10, 3 का पावर 1 से 6, 4 का पावर 1 से 3 और 5 का पावर 1 से 6 बताया है, और मैंने कहा उसे रट लो, याद रख लो, तुम फायदे में रहोगे। ठीक है बच्चों, जनरली मैं ऐसा कहता नहीं हूं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज अगर हम याद रख लेना तो ये हमारा कैलकुलेशन एग्जाम में रिड्यूस कर देता है। समझ में आया बच्चों। अब जैसे कि मान लो मैं वो तो तुमको दोबारा बतलाता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, 2 का पावर 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब कितना 8, 2 का 4 16, 2 का 5 32, 2 का 6 कितना 64, 2 का 7 कितना बच्चों 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024। यहां तक याद होगा बच्चों, तुमको हेल्प होगा। ठीक है, 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का 4 81, 3 का 5 243, 3 पावर 6 729। कितना आसान है ना। 4 का पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 5 का पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 टू द पावर 4 31 सॉरी 625, 625। हाँ 5 का पावर 5 3125। समझे बच्चों। हाँ ये याद रख लो बच्चों, तुमको हेल्प होगा, है ना, राइट। तो देखो यहाँ तुमको मिल गया 243 बच्चों,
है ना। तो 243 क्या है बच्चों, 3 to the power 5 है। अदरवाइज तुम क्या करते, 243 का एलसीएम निकालते, वो अनदर एक क्या बच्चों तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो क्या हो जाएगा, ये देखो log 3 3 to the power 5। समझे बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, राइट। तो आई कैन राइट क्या बच्चों, log 3 to the power 5 बाई log 3। ठीक है, अब ये 5 इधर आ जाएगा, ये फॉर्मूला है बच्चों, मैं बताऊंगा इसके बाद में। तो ये बन जाएगा 5 log 3 बाई log 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो आंसर कितना होगा 5। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, एक फॉर्मूला हम आगे बताएंगे। या फिर एक और तरीका है बच्चों, देखो क्या करोगे, log 3 243 इक्वल टू x मान लो, है ना। बच्चों जब तुम कभी भी log को log लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इक्वेशन के टर्म में अगर इक्वेट करोगे ना, तो log इक्वेट तभी हो पाएगा जब उसका बेस सेम होगा। समझ में आया बच्चों। तो देखो बच्चों, ये log उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। सो 243 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 to the power x implies 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power 5 implies x इक्वल टू 5। बात बराबर है, बोलो हाँ कि नहीं। यहाँ हमने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, log m to the power n को बोलेंगे n log m। हालांकि ये फॉर्मूला भी डिस्कस नहीं किए थे, है ना, लेकिन बता दिया मैंने, इसलिए तुमको समझ लेना है दोनों तरीके से। ठीक है बच्चों, राइट हो गया, है ना। तो बच्चों वीडियो पॉज करके ये सब लिख लो बच्चों, है ना, और खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करो बुक का। देखो तुमको ऑटोमेटिकली ये सारा पावर याद रह जाएगा, जैसे कि मुझे याद है। ठीक है, एक और सवाल बच्चों देखो, log 7 1/343। ठीक है बच्चों, तो इसको इसका वैल्यू कितना है, सॉल्व करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और वैल्यू निकालो। तो इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x मान लो। तो ये log अगर उधर गया तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 1/343 इज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 7 to the power x। ठीक है बच्चों, हाँ यानी अगर हम देखें 7 to the power x बच्चों, है ना, देखो ये भी दिया 1 log 7। ठीक है बच्चों। तो अब देखो 7 का कौन सा पावर ये होता है, 343 देखना है मुझे। तो 7 इंटू 7 कितना, 49। 7 कर दो बच्चों, देखो 9 7 जा 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28, 6 34 हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया, 7 to the power 3 इज इक्वल टू 7 to the power x। इसको ऊपर ले जाओ, तो 7 to the power -3 इक्वल टू 7 to the power x। बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल तो x to the power x कितना हो जाएगा, दैट इज -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तुमको हेल्प करेगा। 7 का भी तुम स्क्वायर ये भी याद रख सकते हो, 7 का पावर 1 7 आसान तुम्हारे लिए। 2 कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 49। 7 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 343, है ना। ठीक है बच्चों, राइट, है ना। तो देखो कितना आसान है, ध्यान दोगे ना बच्चों, तुमको बहुत ही मजा, बहुत ही स्वाद आएगा, बहुत ही स्वाद आएगा इसका सवाल करने में। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व फॉर एक्स। देखो, है ना, तो मैंने तुम्हें क्या कहा बच्चों, जब भी तुम इक्वेशन में क्या इक्वेट करोगे बच्चों, जब दो लॉगरिथम को इक्वेट करोगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, देन व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट बेस मस्ट बी इक्वल, तभी जाके इक्वल होगा, है ना बच्चों। तुमको बेस इक्वल करना है ना। पहला वैल्यू देखो, पहला क्वेश्चन, log बेस 3x इज इक्वल टू गिवन -2। ठीक है, तो बहुत आसान बच्चों, 3 उधर जाए, log उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। तो x क्यों रहा, यहाँ बेस है तो वहां भी बेस बन जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर विच इज 1/9। कितना आसान है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट बच्चों। ठीक है, 1/9। सेकंड, log बेस 8। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, log बेस 8x इज इक्वल टू आई कैन से गिवन 2/3। हाँ, ये 2/3 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x क्या हो जाएगा, 8 to the power 2/3। अब इसके बाद सारा क्या है, इंडिसेस है, इसीलिए इंडिसेस और लॉगरिथम एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। देखो 8 मैंने 2 का क्यूब लिखाया है, ये 2/3 हो गया, 2/3 3 3 कट गया बच्चों। a to the power m to the power n क्या होता है, a to the power mn होता है। तो x क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इस बिट तीसरा बिट क्वेश्चन है, log √3x + 1। log √3x + 1 इज इक्वल टू गिवन 2।
ठीक है बच्चों, अब देखो ये लॉग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, बोलो हाँ कि नहीं। तो क्या हो जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर, इंप्लाइज x प्लस वन इक्वल टू कितना बच्चों, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, इंप्लाइज x इक्वल टू थ्री माइनस वन दैट इज क्या हो गया, टू हो गया। कितना आसान है। साइंस में एक और सवाल करता हूँ, ठीक है। लॉग x 9/16 4 बिट नंबर, हाँ, लॉग बेस x 9/16 इज इक्वल टू -1/2, है ना बच्चों, -1/2। तो देखो लॉग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो 9/16 इक्वल कितना बच्चों, x टू द पावर -1/2। बट व्हाट इज 9/16, आई कैन से 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं कि बच्चों, x टू द पावर -1/2। तो ये इनवर्स ले लो, तो 4/3 का पावर क्या, -1/2 इक्वल टू x टू द पावर -1/2। देखो पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, इक्वल, तो x हो जाएगा 4/3। समझे बच्चों, हाँ या नहीं। कहीं गलत किया क्या बच्चों, देखो तो, पावर तो सेम कर दिया, तो x कितना हो गया, 4/3 हो गया आई थिंक। सही किया हो ना, x टू द पावर, देखो तो log x 9/16 इक्वल टू -1/2, यही क्वेश्चन है। तो 9/16 क्या हो जाएगा, x टू पावर -हाफ हो जाएगा, नहीं क्या, हाँ तो यही कर देंगे बच्चों, यही थोड़ा गलती हो गया। हाँ हाँ, यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, हाँ एक मिनट, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x इक्वल क्या हो जाएगा, इसका पावर -2 हो जाएगा बाबा, x टू द पावर -हाफ इक्वल टू कितना, 9/16। तो x टू द पावर प्लस हाफ कितना, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर कितना, दैट इज 16/9, पावर रिवर्स कर दिया, तो x कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3, वही तो आ रहा है। कहीं कुछ गलती हुआ बच्चों, रुको रुको, दोबारा सॉल्व करते हैं ना, दोबारा ये सवाल सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है, ध्यान देके सुनो, हाँ। देखो बच्चों सवाल दिया हुआ है, log x 9/16, log x 9/16 is equal to, it's given -1/2, ठीक है। तो बच्चों x क्या होगा, उधर माइनस पावर हो जाएगा, सो 9/16 इक्वल क्या होगा, x टू द पावर -1/2, सो दैट इक्वल टू 1/x टू द पावर 1/2 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, हाँ कि नहीं। x टू द पावर -1/2 इक्वल कितना हो जाएगा, सो आई विल राइट 1/x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना, दैट इज 9/16। अब दोनों तरफ इनवर्स ले लो, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 इक्वल टू 16/9 हो जाएगा, नहीं क्या बच्चों, हाँ ये दोनों तरफ इनवर्स ले लिया बच्चों, दोनों को 1/1 कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, x टू द पावर 1/2 चला गया ऊपर, नहीं क्या, और ये 16/9 हो गया। तो व्हाट इज x इक्वल टू बच्चों, 16/9 का पावर 2 हो जाएगा। पावर अगर जाता है लेफ्ट से राइट हैंड साइड तो इनवर्स हो जाता है, तो 16 का स्क्वायर कितना बच्चों, दैट इज 256/81 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ सही है ना, ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों कुछ एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, x, ठीक है बच्चों, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ ये अच्छा सवाल है ना बच्चों, ध्यान देकर सुनो। दिया हुआ है log base 10x, log base 10x is equal to, that is 2a, 2a, log base 10y इक्वल टू b/2 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, राइट 10 टू द पावर a इन टर्म्स ऑफ x, 10 टू द पावर a इन टर्म्स ऑफ a। बच्चों ये फ्रेम में आ रहा है ना, थोड़ा देखते हैं तो, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, यस फ्रेम में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं क्या, कि लॉग अगर 10 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 2a बन जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो आई विल राइट x इक्वल टू 10 का स्क्वायर टू द पावर a, दैट इज इक्वल टू कितना बच्चों, 10 टू द पावर a टर्म में पूछा है ना, नहीं क्या, हाँ तो a अंदर ले आओ, 10 टू द पावर a का स्क्वायर हो जाएगा x इक्वल टू, नहीं क्या बच्चों, हाँ ठीक है, 10 टू द पावर 8 हम क्या, राइट डाउन
10 टू द पावर ए इन टर्म्स ऑफ एक्स, नहीं क्या? तो 10 टू द पावर ए कितना हो जाएगा, यहां से ये पावर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर ए होगा x टू द पावर हाफ विच इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है बच्चों, हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया जाए, ध्यान देके सुनो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट 10 टू द पावर 2b प्लस 1, 10 टू द पावर 2b प्लस 1, ये पूरा पावर है। ठीक है, 10 टू द पावर 2b प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ y, है ना, इन टर्म्स ऑफ y। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना। तो मैंने ले लिया, या इसको देखो, हाँ, तो log बेस 10 y इक्वल टू b बाई 2, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, दैट इज 10 टू द पावर b बाई 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, y कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर b बाई 2। अब मुझे लिखना है 10 टू द पावर b टू b प्लस 1 लिखना है। तुमको समझ में आना बच्चों, ये बेस उधर भी बेस हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर b बाई 2। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं, देखो 10 टू द पावर 2b प्लस 1, आई कैन राइट हियर 10 टू द पावर 2b इंटू 10, हाँ कि नहीं बच्चों, a टू द पावर m प्लस n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है बच्चों, अब देखो 10 टू द पावर 2b को मैं ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ बच्चों, y इक्वल टू 10 टू द पावर b का पावर 1 बाई 2 लिख सकता हूँ। तो इसको ले लूंगा बच्चों 10 टू द पावर b का पावर स्क्वायर ले लूंगा, इंटू 10 कर दूंगा, बट व्हाट इज 10 टू पावर b, यहां से निकाल लो, 10 टू पावर b इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अरे यार, पावर अगर LHS से RHS जाएगा या RHS से LHS जाएगा तो पावर इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो 10 टू पावर b क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया इंटू 10, और आई कैन से 10 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, कितना 10 टू पावर 2b प्लस 1, है ना, 10 टाइम्स ऑफ वाई 4 दिया है बच्चों। 10 टू द पावर b कितना, हाँ हाँ बच्चों, 10 टू द पावर b कितना है, वाई स्क्वायर ना, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 वाई टू द पावर 4, करेक्ट है आंसर। तीसरा क्या दिया है बच्चों, तीसरा दिया हुआ है इफ लॉग, हाँ, इफ लॉग 10p, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाँ, इफ लॉग 10p इज इक्वल टू 2a माइनस b, 2a माइनस b, है ना, then express p in terms of xy, हाँ, express p in terms of x and y। ठीक है बच्चों, राइट। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, log बेस 10p दिया है 2a माइनस b, है ना, 2a माइनस b यही दिया हुआ है ना, तो p को लाना इन टर्म्स ऑफ x और y। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पर जगह तो नहीं लिखने के लिए बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो, ये यहीं पर वहां पर ले जाओ, कहाँ बच्चों, मतलब log 10 को ले जाओ उधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, तो p कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2a माइनस b, सो आई विल राइट 10 टू द पावर 2a बाई 10 टू द पावर b। अरे यार हाँ यानी a टू द पावर m बाई a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n, तो a टू द पावर m माइनस n डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, सो दिस इंप्लाइज p कितना हो गया बच्चों, आई कैन राइट 10 स्क्वायर टू द पावर a, 10 स्क्वायर टू द पावर a बात बराबर है बाई 10 टू द पावर b। बोलो हाँ कि नहीं बच्चों। सो बच्चों 10 या फिर 10 a अंदर ले लो, हाँ a अंदर ले लो, सॉरी a अंदर ले लो, बाहर स्क्वायर कर दो, सो 10 टू द पावर a का वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 10 टू द पावर a कितना है, दैट इज रूट एक्स है, तो यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर, और 10 टू द पावर b कितना है बच्चों, वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x बाई वाई स्क्वायर, सो p हो गया x बाई वाई स्क्वायर। समझे बच्चों, हाँ यानी ठीक है, बहुत ही आसान है ना, तो बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। समझे बच्चों, राइट, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, वीडियो पॉज करो और कंप्लीट करो इन सब चीजों को, है ना। बच्चों देखो इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, शुरुआत में करोगे सही होगा गलत होगा, हु केयर्स यार, है ना। आज थोड़ा गर्मी से राहत है, हुआ। तो बच्चों आ जाओ, एक्सरसाइज के कुछ और सवाल मैं करवा देता हूं, जैसे कि बच्चों मैं तुम्हें देता हूं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू लोगैरिथमिक फॉर्म, है ना, लोगैरिथम फॉर्म में तुमको कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक है, मैं सवाल देता हूं, तो मुझे करके दिखाओ। 5 का स्क्वायर 25, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट देता हूं, बुक में जो दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 0.01। ठीक है बच्चों, बुक के ही सवाल करवा रहा हूँ बच्चों। 64
टू द पावर 1/3 इक्वल टू 4। ये सारे किस फॉर्म में है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। क्या फॉर्म में करना है हमको? लोगैरिथम फॉर्म में करना है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर एक्सपोनेंशियल उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? लॉग बन जाएगा। तो 2 इक्वल टू लॉग 525। कितना आसान है। यहाँ बेस था, यहाँ भी बेस ही हो जाएगा लॉग में। ये देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू लॉग, ये बेस था, यहाँ भी बेस हो जाएगा 0.01, और आई कैन राइट लॉग 10 0.01 इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3 लॉग 64, उधर जाएगा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, लॉग बेस 64 4, और आई कैन राइट लॉग 64 4 इक्वल टू 1/3। समझे बच्चों? देखो मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था ना कि लॉग बेस ए बी क्या होता है? लॉग बी बाई लॉग ए। समझ में आया कि नहीं आया? तुम इसको करके देख सकते हो बच्चों। तो log 4 बाई log 64, दैट इज log 4 बाई log 4 का क्यू, ये 3 इधर आ जाएगा। तो log 4 बाई 3 log 4, ये कट जाएगा तो कितना है? 1/3। बच्चों एक और फॉर्मूला तुमको बताया ना मैंने पहले, log m टू द पावर n क्या होता है? n log m, वही अप्लाई किया हम। 4 का क्यू है, 3 आगे ले आए तो 3 log 4 log 4 log 4 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। ये तुम्हारा दूसरे वाले एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो कर लोगे है ना, एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम फॉर्म। ठीक है बच्चों, राइट। अब ठीक उल्टा करो कुछ सवाल। क्या चीज करना है हमें? लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो log 381 इक्वल टू 4, पहला सवाल। ठीक है, log बेस 8 4 इक्वल टू 2/3। ठीक है, करेक्ट, 2/3। 3 सवाल करूंगा बच्चों। ठीक है, राइट। log 5 1/5, log 5 1/5 इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो इसको, 2 सेकंड सॉल्व करो बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया था बच्चों। देखो, तो ये क्या होगा? अब लॉग उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। लॉग यहाँ बेस बी है तो एक्सपोनेंशियल में भी वो बेस ही रहेगा। तो 81 इक्वल टू 3 टू द पावर 4 हो गया। कितना आसान। या आई कैन राइट 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81, बात बराबर है। ये बेस उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? 4 इक्वल टू 8 टू द पावर 2/3। आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व किया था मैं। सो 8 को क्या लिखूंगा मैं? या डायरेक्टली लिख दो है ना, से 8 टू द पावर 2/3 कितना? 4 हो जाएगा। और क्या, ये क्या होगा? 1/5 इक्वल टू बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा पावर -1, और 5 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/5। कितना आसान है बच्चों, राइट, है ना। तो कितने बच्चों का आंसर सेम आया मेरे साथ में? तो एक अच्छा सा क्या दिल वाला इमोजी यार लिख के दे दो यार कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। ओके। अब आओ बच्चों, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला सवाल। तो मैं तुमको करवाया था कुछ एक्स वाला सवाल, कुछ और सवाल करवाता हूँ। log बेस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 19, सॉरी, इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या होगा बच्चों? ये 5 उधर उधर जाएगा तो लॉग उधर गया तो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्स स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 5 का क्यों हो जाएगा? ये बेस उधर ही बेस बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 125। देखो मैंने तुम्हें कहा था वहां ना, 5 का क्यों याद रख लेना, तुरंत तुरंत निकल गया ना। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 19 प्लस 125, 9 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कितना हो जाएगा? +-12 हो गया आंसर। कितना आसान है बच्चों, राइट। एक और सवाल कर देता हूं। लॉग एक्स 0.008 इज इक्वल टू गिवन, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दैट इज -3। कितना है? -3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 0.008 इक्वल टू एक्स टू द पावर -3। बोलो हाँ कि नहीं? तो आई कैन राइट दिस इज 8/1000 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -3। अरे हाँ या नहीं यार? ठीक है, तो 8/1000 इक्वल टू 1/x टू द पावर क्यू हो जाएगा। हाँ कि नहीं? तो इनवर्स ले लो, 1000 है बच्चों। हाँ, तो एक्स क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स क्यू हो जाएगा 1000/8, और एक्स कितना हो जाएगा? 1000 मतलब क्या हो गया? 10 का क्यू, ये हो जाएगा 2 का क्यू। टू दी पावर, पावर अगर उधर गया तो क्या होता है? इनवर्स हो जाता है। सो बच्चों 3 3 कट जाएगा। सो 10/2 का पावर का 3 का पावर 1/3 कट गया, दैट इज 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो एक्स कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। कितना आसान है,
समझ में आया ना बच्चों? ठीक है बच्चों, तो मैं फिर कहता हूं बच्चों कि किसी भी सवाल में तुमको डाउट हो आफ्टरवर्ड वाचिंग द वीडियो व्हाइल यू आर सॉल्विंग इन योर सॉल्विंग योर बुक, ओके देन मनीष सर is there for you because your growth is my responsibility, right children? Okay, so now children next write second exercise इसका laws of logarithm लिखो बच्चों, laws of logarithm, ठीक है बच्चों, logarithm, laws of logarithms। हाँ, तो देखो बच्चों पहला लॉ, हाँ लिखो, देखो log एनी बेस, हाँ एनी बेस तुम ले लोगे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ a ले लिया, हाँ एम एन क्या होता है log m प्लस log n, बेस सेम रहेगा बच्चों, बेस को तुमको ख्याल रखना है, ठीक है। सेकेंड log बेस a m बाई n, है ना, दैट इज log बेस a m माइनस log बेस a n, ठीक है बच्चों। log बेस a m टू द पावर n, जिसका फॉर्मूला मैं तुमको अप्लाई किया ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो दैट इक्वल टू n log बेस a m बन जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। और तुमको लिखना है क्या, log a तुमको बता चुका हूं मैं, log a कितना, दैट इज 1। नेक्स्ट बच्चों log a1 इक्वल टू 0, log मैंने कहा तुमको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो की कोई भी बेस क्यों ना हो, log 1 हमेशा क्या होता है 0, ठीक है बच्चों। और log a टू द पावर x इज इक्वल टू x होगा, समझे बच्चों, हाँ कि नहीं, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा देखो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो तुमको मैंने कहा ना बच्चों log b a क्या हो जाएगा, log a बाई log b हो जाएगा, तो इसको यहां पर लिखो, तो log a टू द पावर x क्या होगा, log a टू द पावर x बाई log a। अब यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन वाला, ये वाला, तो ये पावर यहाँ आ जाएगा n log a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log a बाई log a कट गया, कितना रहा, x रहा, वही तो लिखा हूं मैं, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ लोगैरिथम तुम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। और तुमको बताया क्या, नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ log 1 0, log 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। बस यही है, ये दो चार फॉर्मूले हैं, अब इसी पे सवाल तुमको करना है ना बच्चों। तो लिखो सवाल नंबर 1 सेकंड एक्सरसाइज का, ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या दिया हुआ, एक्सप्रेस log बेस 10, log बेस 10 दैट इज ac स्क्वायर बाई रूट बी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ log बेस 10a log बेस 10b log बेस 10c, ठीक है बच्चों, इन टर्म्स ऑफ क्या, log बेस 10a log बेस 10b log बेस 10c, है ना। तो बच्चों देखो इसको तुम क्या कर दिए ब्रैकेट में, तो फॉर्मूला क्या तुमको मिला, log बेस a m बाई n, बोलो हाँ या नहीं, तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, दैट इज log बेस a m माइनस log बेस a n हो गया, तो कर दो, तो log बेस 10 ac स्क्वायर माइनस log बेस 10 रूट बी, बोलो हाँ या नहीं। अब देखो ये क्या हो गया, log बेस 10 m इंटू n, तो log m प्लस log n, सो log बेस 10 a प्लस log बेस 10 c स्क्वायर माइनस log बेस 10 क्या बच्चों b का पावर हाफ हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। अब ये क्या होगा बच्चों, log बेस 10 a, अब देखो ये अप्लाई हो जाएगा log क्या बच्चों, log m टू द पावर n क्या होगा, n log n, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पर बेस a लिख दो ना बाबा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 10c माइनस क्या हो जाएगा, ये हाफ भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2 log 10b, ये सॉल्व हो गया, log a log 10 बेस a log 10 बेस b log बेस 10c, ठीक है बच्चों, समझे, हो गया, राइट, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, ठीक है, बस बच्चों और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान सवाल है, ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इवैल्यूएट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस वाले एक्सरसाइज का, हाँ इवैल्यूएट, तुमको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, क्या इवैल्यूएट करना है बच्चों, तो log 5 log 20 log 24 log 25, log 5 log 20 24 20 log 24 log 25 माइनस log 60 log 60,
ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो बच्चों, हाँ, ये लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग डी, तो सारा एक लॉग आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो लॉग क्या बन जाएगा, दैट इज 5 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 25 माइनस लॉग 10। समझे बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। अरे हाँ या नहीं। तो देखो ये लॉग, अरे यार दो दो करके लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो मैं इन दोनों को लिया पहले, तो क्या हो जाएगा लॉग 5 इंटू 20। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है क्या, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है ना यार। तो यहाँ प्लस दिया हुआ तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर लॉग में मल्टीप्लाई है तो इंडिविजुअल लॉग ऐड हो जाएगा ना, अगर इंडिविजुअल लॉग ऐड है तो लॉग एक लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बराबर है। तो लॉग कितना 24 इंटू 25 माइनस लॉग 10 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, बात तो बराबर है। अब फिर देखो लॉग ए यहाँ रहेगा m, ये रहेगा n। सर बेस नहीं लिखा, अरे भाई बेस नहीं लिखा तो सबका तो बेस नहीं लिखा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम बेस में होगा, ठीक है। समझ में आया। तो अगेन फिर क्या होगा, m इंटू एन हो जाएगा, तो फिर यही चीज नहीं आया क्या, लॉग 5 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 25 माइनस लॉग 10। अब क्या है बच्चों, लॉग m माइनस लॉग n, क्या होगा लॉग m बाई n हो जाएगा। तो लॉग m कितना 5 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 25 होल डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो 5, अरे डायरेक्टली काटो ना, 10 2 से कट जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 इंटू 24 कितना 240 इंटू कितना 25। सो लॉग 240 इंटू 25 कितना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 24, 25 4 जा 100 है ना, 25 2 जा 50, नहीं क्या 0 0 5 600, ठीक है बच्चों। तो कितना है लॉग 600 में एक जीरो 6000, समझे बच्चों। कितना है बच्चों, दैट इज लॉग 60 दिया हुआ है ना, मैं 10 लिख दिया हूँ यार, ये गलती हो गया बच्चों, ये 60 दिया हुआ, सॉरी बच्चों ध्यान दे, लॉग 60 दिया हुआ है ना, ये 60 है, ये 60 है, वही तो सर आप गलती लिख दिए, सॉरी बच्चों 60 है, हाँ तो ये राइट थोड़ा सा कट जाएगा है ना, ध्यान देके सुनो। हाँ तो 60 में से 20 3 से कट जाएगा, 3 8 से कट जाएगा, नहीं क्या 16 दिया हुआ है तो, हाँ 16 तो है, ठीक है ना। तो कितना हुआ बच्चों 25 8 जा कितना 25 8 जा 205,000, सो दैट इज लॉग 1000। बच्चों एक बात याद रखना, हाँ लॉग 10 इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, log 10 इक्वल टू 1 वैल्यू। तो आई कैन राइट दिस इज log 10 का क्यूब विच इज अगेन 3 log 10 विच इज इक्वल टू 3। समझ में आया बच्चों, तो आंसर कितना हो गया 3 हो गया। समझे बच्चों, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, log m टू द पावर n क्या होता है n log m, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दे, log 10 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना, ठीक है राइट। तो इस तरह के इवैल्यूएट वाले सवाल तुम कर लोगे, एक सवाल मैं तुमको दे के जाता हूं है ना, तुम सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है बच्चों। तो सवाल है log 6 बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है इसका, log 6 प्लस दैट इज 2 log 5 प्लस log 4 माइनस log 3 माइनस log 2। बच्चों वीडियो थोड़ा पॉज करो और सॉल्व करके दिखाओ, पॉज करो वीडियो फटाफट बच्चों, हो गया ज्यादा नहीं है इसमें है ना, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है हो गया बच्चों। अब जब ध्यान देकर सुनो, तो बच्चों देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा log 6 प्लस ये 2 को उधर ले जाओ, तो log क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बात बराबर है, log m टू द पावर n क्या होगा n log m, तो n को ऊपर ले गया, बात बराबर है, प्लस क्या हो गया log 4 माइनस कॉमन ले जाओ, तो क्या हो गया log 3 प्लस log 2। समझ में आया बच्चों, अरे हाँ या नहीं। तो देखो log m n p सारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक लॉग में एडिशन, सॉरी सारा एडिशन क्या हो जाएगा एक लॉग में मल्टीप्लिकेशन, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 4 माइनस लॉग ये क्या होगा 3 2 जा 6 3 2 जा, अरे हाँ या नहीं। अब देखो लॉग ये हो गया m, ये हो गया n, तो log m माइनस log n क्या होता है log m बाई n, m कितना है 6 इंटू 24 इंटू 4 बाई 6 कट गया, कितना है बच्चों log 100। तो आई कैन राइट log क्या बच्चों 100 मीन्स 10 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू log 10 विच इज इक्वल टू 2। समझे बच्चों, हाँ यानी कितना आसान है ना, ये काम कर रहा है कि नहीं बाबा,
हाँ कर रहा है, थैंक गॉड। हो गया। तो ये था सिंप्लीफाई टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। कितनों का क्वेश्चन का आंसर मैच हुआ 2 के साथ में, एक थम्स अप दो। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक तो प्रूफ वाला, प्रूफ काइंड वाला क्वेश्चन बच्चों, प्रूफ दैट दिया हुआ है, शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाँ, शो दैट 7 log क्या दिया हुआ है, 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80, 3 log 81/80 इज इक्वल टू गिवन log 2। ठीक है बच्चों, राइट। अब एक काम करो, देखो यहाँ पर log 16/15 ये चल जाएगा, पावर ऊपर यहाँ पर 7 चल जाएगा, हाँ यानी प्लस log 25/24 का पावर 5 ऊपर चल जाएगा, प्लस log 81/80 का पावर 3 चल जाएगा। LHS लिया हमने, अरे यार हाँ यानी, ठीक है। अब देखो log m n p, 3 log ऐड है तो एक log में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो log कितना होगा, 16 टू द पावर, सबको 2 मिले आओ बच्चों, 2 और 5 मिले आओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा लिखो पहले, 16/15 टू द पावर 7 इंटू 25/24 टू द पावर 5 इंटू 81/80 का पावर 3। समझे बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, दैट इज लॉग, आई कैन राइट दिस इज 16 टू द पावर 7, मतलब क्या, 2 टू द पावर 4 टू द पावर 7। अरे हाँ यानी बात बराबर है। 15 क्या है, 3 इंटू 5, सो 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7। बच्चों ए याद है मैंने कहा था इंडिसेस में, ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन, राइट। तो ये 15 टू द पावर 7 होगा, हाँ कि नहीं। तो 15 क्या लिखा मैंने, 3 5 जा, सो 3 टू द पावर 7 इंटू क्या, 5 टू द पावर 7 इंटू ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर का पावर 5, ये क्या हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, कितना बच्चों, 8 3 जा, 8 मतलब क्या, 2 का क्यूब इंटू 3, तो 2 का क्यूब का पावर कितना, 5, 3 का पावर कितना, 5 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 का पावर 3, और 80 कितना हो जाएगा, 2 और 5 में 16 5 जा, 16 कितना हुआ, 2 टू द पावर 4 5 पावर 1, सो 2 टू द पावर 4 ओवरऑल पावर 3 5 टू द पावर 3। बोलो हाँ यानी बच्चों, ठीक है। तो अब सारा पावर सॉल्व कर देते हैं। सो लॉग ये क्या होगा, 2 टू द पावर 7 2 जा, कितना बच्चों, 2 टू द पावर 14 इंटू ये 5 टू द पावर 5 टू जा 10 इंटू 3 टू द पावर 3 4 जा 12 होल डिवाइड बाय, यहाँ देखो क्या होगा बच्चों, 3 टू द पावर 7, ये 3 टू द पावर 5, नहीं क्या, बेस से में पावर क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, सो 3 टू द पावर 12 इंटू 5 का पावर 7 है, 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 7 3 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, तो 5 का पावर हो जाएगा क्या बच्चों, दैट इज 10, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये 2 टू द पावर 5 3 जा 15, 2 टू द पावर हो गया 15। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। कहीं गलती किया क्या, हाँ, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बच्चों एक बात तो मैं बोलना भूल गया, 4 3 जा 12 और 15 कितना हो गया बच्चों, कहीं गलती कर दिया, 5 3 जा 15, 2 का क्यू है ना 8 इंटू 3 24, 2 क्यू 5, हाँ 5 15, और ये 4 से 12 27 हो जाएगा बच्चों, ये 27 हो जाएगा। और यहाँ गलती कर दिया बच्चों, 7 4 जा 28 होगा ना, सॉरी सॉरी बच्चों, 7 4 जा कितना 28 हो जाएगा, यही गलती हो गया है। और ठीक है, यहाँ देखो कितना हो गया, 4 3 जा कितना 12 और 5 3 जा 15, 12 15 15 12 27 20 पावर 27, तो कितना है बच्चों, देखो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा 2 का पावर 1 बचेगा, दैट इज लॉग 2। कितना आसान है देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों तुमको करना पड़ेगा, है ना। दिस इज आई मीन ये कुछ नहीं किया जाता है ना, राइट बच्चों, मिटा दो इसको, ठीक है। तो ये था प्रूफ करने वाले सवाल, है ना। सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, सवाल करने हैं, हो गया और क्या, है ना। लॉजिक अपने आप डेवलप हो जाएगा बच्चों, डोंट वरी, ठीक है बच्चों, राइट। नेक्स्ट सवाल, सॉल्व फॉर एक्स इन एन इक्वेशन, है बच्चों।
तो सॉल्व फॉर एक्स, देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ना, तुमको एक्स के लिए सॉल्व करना है क्या, लॉग बेस 10x, लॉग बेस 10x माइनस, है ना, लॉग बेस 10 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, दैट इज गिवन 1। ठीक है, देखो बेस 10 है, तो आई विल राइट लॉग बेस 10 m माइनस लॉग n, तो क्या होगा, दैट इज x बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, लॉग 1 है तो आई कैन राइट 10 लॉग ए 1 ही होता है, तो बेस 10 हुआ कि नहीं बच्चों, जब बेस 10 होगा तभी ये इक्वेट होगा बच्चों, इसका मतलब x बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 10 हो गया, तो x कितना होगा 10 इंटू 2x माइनस 1, सो दैट इज यहाँ x इक्वल कितना है 20x माइनस 20, इधर ले आओ इसको बच्चों, तो 19x इक्वल टू 20, x कितना हो गया 20 बाई 19। ठीक है बच्चों, कहीं फिर गलती किया क्या, 20 कहाँ से आ गया यार, ए 10 1 या 10 1, सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है भाई, कैलकुलेशन इधर हो रहा है आज मेरे साथ में। ठीक है बच्चों, x कितना हो गया 10 बाई 19 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, हाँ ना बच्चों, राइट, तो कितना आसान है, एक और सवाल दूं तुम कर लोगे, है ना, एक और सवाल देता हूं, ठीक है, जरा ध्यान देके सुनो, क्या है सवाल, सवाल है बच्चों लॉग बेस 10 ना ना, हाँ लॉग बेस 10 5x, log base 10 5, log base 10 5, हाँ ठीक है प्लस log base 10 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log base 10 x प्लस 5 प्लस 1। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके दिखा मुझे, हो गया, अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, देखो, तो यहाँ हम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, तो लॉग बेस 10 5 इंटू 5x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ भी इसको यहाँ ले आओ, लॉग कितना 10x प्लस 5, बात बराबर है यार, इक्वल टू लॉग 1 को क्या लिख सकते हैं हम 10 यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है, तो देखो बेस सेम है तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 5 इंटू 5x प्लस 1 होल डिवाइड बाई x प्लस 5 इज इक्वल कितना बच्चों, लॉग बेस 10 तो लॉग बेस 10 कट गया दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5x प्लस 1 बाई x प्लस 5 कितना हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 5 2 जा कट गया, तो 5x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो 5x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2 5 जा 10, इसको इधर ले आओ, 3x इक्वल टू 9 इंप्लाइज x इक्वल टू 3, देखो x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 3, समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितना आसान है ना, बस खाली तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो जितने बच्चों का सही हुआ है वो एक थम्स अप, सच में नहीं यार, है ना, जस्ट ये थम वाला इमोजी डालो कहाँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों, राइट, है ना, फिर बच्चों एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लाना है, ठीक है बच्चों, क्या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लेकर के आना है ना, तो क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान देकर सुनो, देखो सवाल है log 10 बेस y, नेक्स्ट क्वेश्चन log बेस 10 y प्लस 2 log बेस 10 प्लस 2 log बेस 10 x है ना, x इक्वल टू 2, सवाल है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ क्या बच्चों x, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा बेस 10 है यहाँ पर, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log बेस 10 a इंटू वाई प्लस ये 2 को यहाँ ले आओ, तो log बेस 10 x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अरे यार यहाँ फॉर्मूला भूल गए क्या, log m टू द पावर n, भाई क्या होता है n log m होता है, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा से नहीं दिख रहा है क्या, हुआ, ठीक है, तो देखो अब क्या होगा बेस सेम हो गया, तो क्या होगा log m प्लस log n, तो क्या हो गया log y इंटू एक्स स्क्वायर बेस 10 इक्वल टू 2 हो गया, तो y इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100, तो व्हाट इज y इज इक्वल टू 100 बाई एक्स स्क्वायर, कितना आसान है, देखो समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट, तो ये कुछ सवाल और करेंगे बच्चों, डोंट वरी अभी खत्म नहीं किए हैं ना,
और सवाल करेंगे, लेकिन यकीन मानो बच्चों, है ना, जो भी तुम्हारा डाउट होगा, हाँ ना, तुम भेजो बच्चों, मैं टाइम ले सकता हूँ क्योंकि मैं 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 11 12 का पूरा मतलब फिजिक्स, है ना, सारा वीडियो बनाना है मुझे बच्चों, तो बहुत टाइम जाता है ना, ठीक है, उसको एडिट करना होता है, बहुत कुछ मैं खुद करता हूँ बच्चों, है ना, मैं मुझे मतलब इसलिए टाइम थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है ना, तो भले तुम मतलब एक डाउट लिखो, तो हो सकता है मैं उस डाउट को थोड़ा सा डिले में 1 2 दिन के बाद समझाऊँ, लेकिन समझाऊंगा जरूर, ठीक है, राइट, है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, देखो, राइट द लोगैरिथम इक्वेशन, फिजिक्स और मैथ साथ में, है ना बच्चों, राइट द लोगैरिथम इक्वेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी का रूट ओवर, इसको लॉग में लिखो, राइट बच्चों, तो वेरी इजी, दोनों तरफ लॉग लॉग ले जाओ बच्चों, तो लॉग t इक्वल टू लॉग क्या 2 पाई l बाई जी का रूट ओवर, वेरी सिंपल, सो लॉग t इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग ये m इंटू एन हो जाएगा, तो लॉग 2 पाई प्लस लॉग l बाई जी का पावर कितना हो जाएगा, हाफ, रूट का मतलब कितना होता है, हाफ हो जाता है, दैट इज लॉग 2 पाई प्लस ये हाफ इधर आ जाएगा, log m टू द पावर n, सो 1/2 log l बाई जी, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 पाई प्लस 1 बाई, देखो ये log m बाई n हो गया, सो विच इज log m मतलब l माइनस log n मतलब g, समझ में आया बच्चों, दैट इज log कितना आ गया t, तो log देखो यहाँ फर्दर इसको ब्रेक कर सकते हैं, log 2 पाई को आई कैन राइट, अरे हाँ यही पर ब्रेक करते हैं, तो log 2 पाई इक्वल टू log 2 प्लस log पाई, log mn हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 log l माइनस log g, देखो कितना आसानी से हो गया, ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के, जिसका फिजिक्स अच्छा होगा ना बच्चों, उसका मैथ अच्छा ही होगा, क्योंकि देखो बिना मैथमेटिकल टूल के हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, हमें मैथ चाहिए, है ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बच्चों मैथ चाहिए, समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज के सवाल करते हैं, है ना, एक्सरसाइज कुछ सवाल करते हैं, तो ध्यान दो बच्चों, हाँ कुछ एक सवाल करवाऊंगा बच्चों, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ जो सवाल तुमको डाउट रहता है तो मुझसे पूछो, मैं सवाल कर दूंगा, ठीक है, तो बच्चों देखो, एक्सप्रेस लॉग, एक्सप्रेस करना, हाँ लॉग बेस 10 क्या बच्चों, दैट इज कहाँ गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यू बाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई क्यू बाई जेड इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड, हाँ, तो बच्चों देखो लॉग बेस 10 ये क्या हो जाएगा m बाई n, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू हो गया log m माइनस log n, अब ये क्या हो गया log m इंटू log n, तो log बेस 10 दिया हो, तो यहाँ पे log बेस 10 दोगे, तो log बेस 10 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस log बेस 10 वाई क्यू माइनस log बेस 10 जेड हो जाएगा, अब ये log m टू द पावर n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log बेस 10 x प्लस 3 log बेस 10 y माइनस log बेस 10 z, हो गया बच्चों, राइट, दो कितना आसान है ना, कर लोगे ना इस तरह के सवाल बच्चों, है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखो log 81 बाई log 27, हाँ log 81 बाई log 27, तो आई कैन राइट बच्चों log इसका वैल्यू निकालो, हाँ 87 मतलब 3, 81 मतलब 3 पावर 4 और 27 मतलब log 3 का क्यूब, तो ये क्या होगा log m टू द पावर n, तो हो जाएगा ये ऊपर में क्या हो जाएगा दैट इज 4 log 3, दिस इज 3 log 3 log 3 log 3 कैंसिल, आंसर इज 4/3, इसीलिए मैं तुमको बोला था कि 2 3 4 5 और 6 2 3 4 5 का क्यूब या स्क्वायर सब ऐसे याद रख लो, ठीक है, तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, मैंने कहा ना आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एक सवाल, हाँ इफ log m प्लस n दिया हुआ है log m प्लस n, नेक्स्ट सवाल, हाँ log m प्लस n इज इक्वल टू, कहाँ गया क्वेश्चन, log m प्लस log n, हाँ इज इक्वल टू log m प्लस log n, देन तुमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कहाँ गया m इक्वल टू n बाई m इज इक्वल टू n बाई n माइनस 1,
ठीक है बच्चों, हाँ या नहीं? तो बहुत आसान, दोनों तरफ में देखो, ये हो गया लॉग m प्लस एन इक्वल क्या होगा बच्चों, लॉग ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग भी सेम बेस है ना, तो हो जाएगा mn। ठीक है, तो लॉग लॉग कट जाएगा दोनों तरफ, विथ सेम बेस है तभी कटेगा वरना नहीं कटेगा। तो आई कैन से m प्लस एन इक्वल टू mn हो जाएगा। ठीक है, हमको m निकालना है, तो m इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, mn माइनस एन, यहाँ से n कॉमन ले जाओ, m माइनस वन हो गया इक्वल टू m, नहीं क्या, अच्छा n के टर्म में चाहिए हमको, नहीं क्या, n के टर्म में चाहिए, तो हमको n उधर ले जाओ या m ले जाओ, हाँ m ले जाओ, n कितना होगा mn माइनस m, तो m कॉमन ले जाओ, तो n माइनस वन इक्वल टू n इम्प्लाइज m इक्वल टू n बाई n माइनस वन। कितना आसान है, कितना जल्दी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं क्या बच्चों, हाँ ना, लाइक वाइज है ना। कुछ और सवाल मैं कर देता हूँ बच्चों, ये सवाल एक दो सवाल और करता हूँ, ठीक है बच्चों, राइट, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम देखो सवाल सॉल्व करो, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो फिर मनीष सर तो है तुम्हारे लिए, हाँ काम कर रहा है। तो सवाल है सॉल्व फॉर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, सवाल है, ये तो सवाल तुमको मैं करवाया हूँ ऐसे सवाल, फिर भी लॉग एक्स प्लस टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू, लॉग एक्स प्लस टू प्लस लॉग एक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना बच्चों, दैट इज लॉग फाइव, कितना, लॉग फाइव। देखो बच्चों लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम एन हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज लॉग फाइव हो जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग लॉग कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू फाइव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू फाइव, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन, एक्स इक्वल टू नाइन का रूट ओवर इक्वल प्लस माइनस थ्री। समझ में आया बच्चों, राइट, है ना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, है ना, देखो तुम सवाल को सॉल्व करो, है ना, अगर डाउट निकलता है तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए, है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये था वीडियो लॉगरिथम पे, वन शॉट था, डिफरेंट वैरायटी के सवाल हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर तुमको कहीं भी तुमको ऐसा लगे कि सर मुझे डाउट है इस पर्टिकुलर पोर्शन में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तुम कमेंट करो बच्चों, मनीष सर दे, मैं खुद तुमको रिप्लाई करूंगा तुम्हारा नाम लेकर के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो लाइक आमीन तुमको पसंद आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में धड़ल्ले से शेयर करना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा वीडियो चाहिए, मुझे बच्चों ने पर्टिकुलरली बताया है कौन कौन सा वीडियो, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।